Hello student. So in math subject today we are going to learn about the place value, phase value and the expanded form of any number. So start with place value. Suppose the digit is 7, 4, 5 and 9. So how to put in the place value? First make a place value chart like this. From right, at first write O. O means ones, then T. T means tens, H means hundreds and TH means thousands. So write 9 in ones place, write 5 in tens place and write 4 in hundreds place and write 7 in thousands place. So the number will be 7459. Then what is the face value of 7? So the face value of 7 is 7. The face value of 4 is 4 and the face value of 5 is 5 and the face value of 9 is 9. But in the place value, for place value, the place value of 7 is 7000. Okay. Then the place value of 4. Place value of 4 is 400. So we will write 400 plus. And what about 5? So 5 place value is tens, means we have to write 50 plus. Then 9. 9 is ones place. So we have to write only 9. Okay. So this is the place value of number. This is the face value. And this is also a expanded form. Then this will number 1 and make another question. So another digit is 5, 4, 2, 3. So let's put in place value box. First write box like this and make it 4 boxes. In first box you have to write O. O means ones, T means tens, H means hundreds and TH means thousands. First digit 3. So write 3 in ones place, write 2 in tens place, write 4 in hundreds place and write 5 in thousands place. So our number will be 5000. So write 5000 plus 400. So write 400 plus again 2 tens means 20 plus 3 ones means only 3. Okay. Now let's see how to add a number. Suppose we have to add 4, 6, 3 plus 4, 3 and 5, 4. Okay. So this one ones place,
So write ones. This is for tens place, write tens, and this is for 100 place, so write H. Okay. Now let's add 3 plus 4 equal to 7. Okay. Then 6 plus 3 equal to 9. Let's make it 9. Then 4 plus 4, 8. So let's write 8. Now another example. Another number is 8, 4, 5 plus 3, 7, 6. Now we have to add this. How to add? Just put the place value. This is for ones place value. This is for tens, and this is for 100. Okay. So 5 plus 6. 5 plus 6 equal to 11. Okay. Okay. 5 plus 6 equal to 11. So we have to write only ones place because we have in ones place. So write only 1. And this one will be carry in tens place. So write it here. Okay. Again, add this. 4 plus 7 equal to 11. Again 11. So write 11. 11 plus 1. Add 11 plus 1 equal to 12. So we have to write only ones place. So write 2 here. And this one will be carry in 100 place. So again add this. 8 plus 3, 11. 11 plus 1. So 11 plus 1. Again it's 12. So write 12. Okay. So this is the addition. Now let's learn subtraction. Okay. So suppose we have number. First put place value. Suppose we have number 4, 3, 2 plus, sorry, minus 3, 1, 2. Let's subtract. So 2 minus 2 equal to 0. 3 minus 1 equal to 2. Again 4 minus 3 equal to 1. Again let's see another example. First write place value, then write the digit. Suppose 4, 7, 6, then 9, 8. This is 2. Let's subtract. So how will you subtract? Let's see. 6 minus 9. It's not possible. So let's carry from tens. So it will be 16. Okay. So subtract 16, subtract 19, subtract 9 from 16 will be 7. Then so there was 7 here, but now 1 is gone. So here is only 6. So again we have to subtract 8 from 6. It is not possible. So we have to carry 1 from this. So it will be
Now 16. Okay, so just again subtract 8 from 16. It will be 8. Then here was 4, but now 1 is gone, so there is only 3. So let's subtract 3 minus 2 equal to 1. So your final answer is 187. Now let's see about multiply. Suppose we have digit 4, 3, 6, and we have to multiply it from 6. First, write here the place value of ones, tens, and hundreds. So let's multiply 6 multiply 6 6, and the here 3 is will be carry. So write 3 here. Now again multiply 6 from 3. 6 3 is 18. 18 plus 3. 18 plus 3 equal to 21. So we have to write only ones. So write 1, and this 2 will be carry. Again 6 4 ja 6 4 ja 24. So 24 plus 2. So write 24 plus 2 will be 26. Just write here 26. Okay. So here is the place value, phase value, the expanded form of number, addition, subtraction, and here is multiplication. Hello student. So in computer subject, let's start with input device and output device. So here are some examples of input devices and output devices. So this is an keyboard, which is input device. So keyboard is used for typing purpose. This is mouse. Mouse is also input device, which is used for pointing. Okay, then joystick key. Joystick key is an input device which is used to play a game or control button on game. Then scanner. Scanner is input device and it's used to scan a document or photos. This is a web camera. This is also input device and it is used to take photos
and it is used while video calling. Next is microphone. So microphone is used to record voice. Then output device. This is a monitor. Monitor, printer, speaker, headphone, and projector. All are output devices. So monitor is basically used for display, and printer is used for something print on paper, and a speaker is used for play music in a loud sound. Headphone is used for music. This is a projector. So projector is used for project a video or project a presentation in a big screen. Next, then introduction to computer. So computer is a machine developed by human being. ठीक है, तो कंप्यूटर का किसने बनाया है? कंप्यूटर का किसी इंसान ने बनाया है. It generates information by the help of data, take and make our work faster and easier. So ये क्या करता है? कंप्यूटर एक तरह से एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है बाय द हेल्प ऑफ डेटा टेकन एंड मेक्स आवर वर्क फास्टर एंड ईजियर. जो डेटा हम लोग से लेता है उसी डेटा को वो प्रोसेस करता है और एक फास्टर और ईजियर रिजल्ट देता है. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन यूज फॉर डिफरेंट टास्क. ठीक है, बहुत अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग मशीन यूज़ किया जाता है, बट द कंप्यूटर इज ए मल्टीटास्किंग मशीन. ओके, कंप्यूटर इज ए मल्टीटास्किंग मीन्स एक से ज़्यादा टास्क कर सकता है. ठीक है, एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकता है. Different tasks can be performed on computer simultaneously, such as कंप्यूटर एक समय एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है. अब देखते हैं एक टाइम में वो क्या क्या काम कर सकता है. ओके. प्लेइंग गेम्स. ओके. नेक्स्ट, टाइपिंग डॉक्यूमेंट लेटर एप्लीकेशन. ठीक है, किसी एप्लीकेशन में हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं. सॉर्टिंग डेटा, डेटा को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, डेटा को हम लोग सीक्वेंस में सजा सकते हैं. देन वॉचिंग मूवीज़, हम लोग कंप्यूटर में मूवी वॉच कर सकते हैं, वीडियो वॉच कर सकते हैं. देन लिसनिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक को हम लोग सुन सकते हैं. डूइंग कैलकुलेशन, मोबाइल कंप्यूटर में हम लोग कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं. देन सेंडिंग, रिसीविंग ईमेल etc. और कंप्यूटर में हम लोग मेल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, टुडे कंप्यूटर आर बीइंग used in most of the fields of life because of their fast. ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग बहुत सारी जगह में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं फॉर देयर फास्ट एक्यूरेट एंड मल्टीटास्किंग फीचर. ठीक है, इसके फास्ट है, बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही करेक्ट रिजल्ट देता है और मल्टीटास्किंग है, एक से ज़्यादा वो काम कर सकता है. इसी वजह से कंप्यूटर को बहुत सारी जगहों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ कंप्यूटर एट डिफरेंट फील्ड्स. अलग अलग जगह में हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, सच एज होम, घर में यूज़ करते हैं, स्कूल्स, ऑफिसेज, शॉप, हॉस्पिटल्स, बैंक, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड मैनी अदर प्लेसेस. और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज हाउ डज ए कंप्यूटर फंक्शन. ओके, कंप्यूटर कैसे काम करता है? A computer function on the basics of input process output. It means it takes input from the user. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है. किससे लेता है? हम लोगों से, जो कंप्यूटर के सामने बैठता है, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, तो उससे इनपुट लेता है. देन इट प्रोसेस ऑन डेटा.
और जो इनपुट हमसे लेता है वो क्या करता है, उसके डेटा को प्रोसेस करता है। देन प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, इट गिव द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इनपुट। ठीक है, आपको जैसा हम लोग इनपुट देते हैं सेम उसी के अनुसार प्रोसेस होकर वो हम लोग को आउटपुट देता है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। बस इसका तीन ही फार्मूला है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, देन नेक्स्ट, लेट्स सी, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड माउस। ओके, इनपुट होता है, कीबोर्ड माउस से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ लेटर टाइप करते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग माउस से कुछ हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो क्या है वो सब क्या है, तुम्हारा इनपुट है। इनपुट होने के बाद कहाँ जाता है वो, सीपीयू में। सीपीयू में क्या होता है, डेटा, डेटा तुम्हारा एक सेकंड, हाँ, डेटा क्या होता है, डेटा तुम्हारा प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, जो आउटपुट होता है, आउटपुट रिजल्ट हमें शो करता है, मॉनिटर पे वो शो करेगा। देन नेक्स्ट, accordingly we can divide the peripheral of computer into three categories. Peripheral means हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ जो जो हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होता है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। ओके, दिस ऑल आर पेरिफेरल ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो बेसिकली इतने सारे डिवाइस को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, इनपुट डिवाइस। सो द कीबोर्ड एंड माउस help us to enter the input into the computer. A joystick gives the direction to play a game. These are called input devices. Okay, तो क्या होता है, the keyboard and mouse help us to enter the input into computer. कीबोर्ड और माउस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं। और जॉयस्टिक की से क्या करते हैं, जॉयस्टिक गिव डायरेक्शन वाइल प्ले गेम। जैसे जैसे जब हम लोग कोई गेम प्ले करते हैं तो जॉयस्टिक से क्या हम लोग कोई डायरेक्शन इनपुट करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, दिस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, ओके, these are input devices, keyboard, mouse and joystick key. Next, then processing device. hmm. Processing device means CPU. CPU full form is central processing unit. Okay, and there is only one processing device in computer, which is CPU, central processing unit. So the central processing unit, CPU, processes the input and produces an output. सीपीयू क्या करता है, इनपुट प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट प्रोड्यूस करता है, आउटपुट देता है। द सीपीयू इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। सीपीयू को क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए प्रोसेसिंग डिवाइस करते हैं क्योंकि ये डाटा डेटा को प्रोसेस करता है। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, और सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। दैट कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो क्या करता है, कंप्यूटर के सारे पार्ट को कंट्रोल करके रखता है। ओके, नेक्स्ट, देन आउटपुट डिवाइस। सी, आउटपुट डिवाइस, द मॉनिटर डिस्प्ले द रिजल्ट। ओके, मॉनिटर क्या करता है, हमको कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले करता है। वाइल द प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर प्रिंट्स द रिजल्ट ऑन शीट और ए पेपर। प्रिंटर क्या करता है, कुछ प्रिंट करता है, कहाँ प्रिंट करके देता है हमें, कोई शीट या कोई पेपर पे प्रिंट करके देता है। वाइल स्पीकर, स्पीकर क्या करता है, स्पीकर गिव आउट साउंड और म्यूजिक। स्पीकर से हमें कोई साउंड या कोई म्यूजिक सुनाई देता है। These are called output devices. Okay, printer, speaker, monitor. Next, next, memory of computer. Okay, so let's see what is memory of computer. A large amount of data can be stored on the computer. कंप्यूटर में क्या करते हैं हम लोग, वेरी लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट में हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं। टू स्टोर द डेटा, द कंप्यूटर हैज a memory inside its CPU. कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक सीपीयू होता है।
दिस मेमोरी इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क। ओके, और इस मेमोरी को क्या कहते हैं, जहाँ पे हम लोग का डेटा स्टोर होता है, इसको हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क। समटाइम्स some external memories such as DVD-ROM, CD-ROM and pen drive are used to store the data। और कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ एक्सटर्नल मेमोरी, कुछ बाहर के मेमोरी जैसे होते हैं, जैसे विच इज सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरीज क्या क्या हो जाएगा, DVD-ROM, CD-ROM एंड पेन ड्राइव आर यूज टू स्टोर द डेटा। इसको भी इन तीनों को भी हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। These are called the external portable memories। ओके, तो डीवीडी रोम, सीडी रोम एंड पेन ड्राइव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पोर्टेबल मेमोरीज। ओके, नेक्स्ट। ओके, सी दिस इज हार्ड डिस्क, दिस इज डीवीडी एंड दिस इज पेन ड्राइव। ओके, ओके, देन सी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर में क्या क्या क्वालिटीज है। ओके, कंप्यूटर हैज मैनी यूनिक फीचर्स दैट मेक्स इट ट्रूली एन अमेजिंग मशीन। कंप्यूटर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको हम लोग एक अमेजिंग, बहुत ही अच्छा मशीन मानते हैं। सम ऑफ देम आर, इसमें से कुछ क्वालिटीज़ क्या क्या है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या क्वालिटीज़ होता है कंप्यूटर में। हाँ, पहला क्वालिटी क्या है इसमें, कि इट वर्क्स रियली वेरी फास्ट। ये बहुत ही फास्ट काम करता है, ह्यूमन से, हम लोगों से बहुत ज़्यादा फास्ट काम करेगा। इट प्रोसेस द डेटा एक्यूरेटली, ये डेटा को हमेशा एक्यूरेटली प्रोसेस करता है, कभी ये रॉन्ग नहीं हो सकता। ओके, ह्यूमंस हम लोग गलत रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, इट डज नॉट गेट बोर्ड और टायर्ड। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, कभी भी बोर्ड नहीं होते हैं, कभी भी टायर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या होता है, ज़्यादा काम करते हैं तो बोर हो जाते हैं, कभी कभी टायर्ड भी हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको जितना भी काम करा, वो कभी ना ही कभी बोर होगा और ना ही कभी थकेगा, ना ही कहीं टायर्ड होगा। नेक्स्ट, इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। ये एक टाइम पे सिर्फ एक से ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम में सिर्फ एक काम ही कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकता है। देन लास्ट है, इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट, okay, then types of computer। Okay, now see how many types of computer। all types of computers have a CPU। जितना भी कंप्यूटर्स है, सबका क्या होता है, एक सीपीयू होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा एंड ए मॉनिटर, और एक मॉनिटर स्पीकर होगा। बट ऑल कंप्यूटर्स आर डिफरेंट इन देयर साइज। लेकिन जितने तरह के कंप्यूटर है, सबका साइज बहुत ही डिफरेंट होता है। किसी का साइज छोटा होता है, किसी का साइज फ्लैट होता है, तो किसी का साइज बहुत ही बड़ा होता है। ओके, किसी का साइज भी डिफरेंट होता है, किसी का कॉस्ट भी डिफरेंट होता है, किसी का स्पीड भी डिफरेंट होता है। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग साइज, अलग अलग कॉस्ट, अलग अलग स्पीड होता है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, वन नंबर है पर्सनल कंप्यूटर मीन पीसी। ठीक है, पीसी किसको बोलते हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो हर घर में तुमको मिलेगा, उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मेड टू यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। इस टाइप के कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक टाइम पे सिर्फ एक आदमी, एक यूजर ही यूज कर सकते हैं। इसके अंदर में क्या कौन कौन किस किस टाइप के कंप्यूटर्स आते हैं, तो होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। कंप्यूटर्स आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। ओके, तो पर्सनल कंप्यूटर में ये तीन टाइप के कंप्यूटर्स आते हैं, डेस्कटॉप जो हम लोग डेस्क के ऊपर रख के चला सकते हैं, ओके, और लैपटॉप जो बहुत ही फ्लैट होता है, जिसको कहीं भी हम लोग ले जा सकते हैं, और पाम टॉप क्या होता है, जो तो टैबलेट होता है, मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको बोलते हैं पाम टॉप, जिसको हम लोग हाथ में रख के भी चला सकते हैं, बहुत ही हल्का होता है। ओके, नेक्स्ट,
Okay, see, this is laptop, this is an palm top, and this is a desktop. Okay, लैपटॉप कंप्यूटर साइज स्मॉल है, स्पीड स्पीड भी अच्छा है, इसका स्पीड गुड है। नेक्स्ट है तुम्हारा palm top कंप्यूटर। ओके, इसका साइज वेरी स्मॉल है, ये साइज में बहुत छोटा होता है, ये हाथ में भी आ सकता है, इतना छोटा होता है। इसका साइज, इसका स्पीड भी गुड है, अच्छा है स्पीड। नेक्स्ट है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका साइज मीडियम होता है, ज़्यादा ना छोटा होता ना ज़्यादा बड़ा होता है। स्पीड इसका भी अच्छा ही होता है। ओके, नेक्स्ट। Okay, let's see here. Okay, so this is the डेस्कटॉप स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, चाहे तुम्हारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या कॉम्पटॉप हो, हर कंप्यूटर में तुम्हारा एक डेस्कटॉप का स्क्रीन ऐसा मिलेगा। ओके, जिसको हम लोग होम स्क्रीन भी कह सकते हैं। और ये स्क्रीन कब देखने को मिलता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्क्रीन हमें ये देखने मिलेगा, जैसे डेस्कटॉप स्क्रीन। तो डेस्कटॉप स्क्रीन में क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले देखो ये क्या है। सेकेंड, नीचे में तुम्हारा एक बटन होता है। हाँ, जी, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन। अच्छा देखो, हाँ, देखो ये होता है तुम्हारा स्टार्ट बटन। ठीक है, देखो ये होता है स्टार्ट बटन। ओके, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे मेन्यूज को देख सकते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या है, पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल इस बटन से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है टास्क बार। टास्क बार किसको बोलते हैं, टास्क वेर इज टास्क बार। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ना ये जो लाइन है ना पूरा, ये होता है टास्क बार। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को शो होता है, यहाँ पे हमें शो होता है, क्या शो होता है कि हमने कितने सारे एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। जैसे यहाँ पे दिखता, यहाँ पे भी दिखेगा। इस देखो, डब्ल्यू हमें हमने वर्ड ओपन किया हुआ है, और एक क्वेश्चन मार्क, और एक बुक, और एक फाइल एक्सप्लोरर, और एक गूगल क्रोम। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी 5 एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है जो कि शो हो रहा है टास्क बार पे। नेक्स्ट है तुम्हारा शॉर्टकट। शॉर्टकट भी इजी होता है शॉर्टकट। ठीक है, ये होता है शॉर्टकट, जिसमें शॉर्टकट का एरो आता है, उसको बोलते हैं शॉर्टकट। और एक होता है आइकॉन। आइकॉन को सारा को आइकॉन बोल देंगे। ठीक है, तुम्हें जितना भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है, ये सारा को हम लोग क्या बोलते हैं, आइकॉन। दिस ऑल आर आइकॉन। ओके, ओके देन यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।